Good morning to all of you. Students, hope all of you are fine at your home due to COVID. Before starting our chapter, I take pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, in our last assignment, we have done the chapter number 1, the cloud, and in the last one, the strawberry pink villa. We have completed the half chapter up to page number 20 in our last assignment. Now in this we will start from the page number 21. Whatever for Spyro, Larry would protest in well simulated astonishment. She's never done anything for us. Why should we consider her? बेटा इसमें जो है वो स्पायरो जो है वो उसकी मदर की हमेशा तारीफ़ करता था। तो जो ये लैरी है, लैरी जो है उनका बेटा है, वो कहता है कि हम क्यों करें उनकी प्रेज़, पता नहीं क्यों जो स्पायरो है वो उनकी हेल्प मतलब हमेशा प्रेज़ करता रहता है। हम तो हमारे लिए तो उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। Golly's master Loris, don't joke like that, Spyro would say in anguish. जो स्पायरो है वो थोड़ा गुस्से से बोलता है कि तुम ऐसे मत कहो, क्योंकि गॉलिस और लैरी जो है, लैरी को प्यार से उसने लॉरिस बोला गया कि उनको बोल रहे हैं कि ऐसे मजाक मत करो, वो बहुत गुस्से में बोल रहा है ये चीज़ स्पायरो। He is quite right, Spyro, Lassil would say very seriously. She is really not much good as a mother, you know. और जो लैसिल है वो भी बोल रही है कि हाँ वो सही में सच में बोल रहा है, सीरियसली हो जाओ तुम, कि मदर जो है वो उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। Don't says that, Spyro would roar. Honest to God, if I had a mother like yours, I had goes down every morning and kisses her feet. वो जो स्पायरो है वो कह रहा है कि अगर मेरी मदर तुम्हारी मदर जैसी होती तो मैं सुबह उठ के हर रोज़ उनके पैरों को टच करता, उनका आशीर्वाद लेता और उनको हमेशा हग और किस करता। So we were installed in the villa and we each settled down and adapted ourselves to our surroundings in our respective ways. Margot donned a swimsuit and sat sunbathing in the olive groves. It had taken 3 husky peasants boys half an hour sweating and panting to get Larry's trunks into the villa. While Larry bustled around them directing operations, once they were installed, Larry spent a happy day unpacking them, and the room was so full of books that it was almost impossible to get in or out. Larry would spend the whole day in there with his typewriter, only emerging dreamily for meals. बेटा इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वो सारे जो हैं वो अपना अपना जो सामान जो है वो उन्होंने अपने सराउंडिंग्स अपने आसपास के अकॉर्डिंग अपना सेटल डाउन करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उसने बोला है कि जो मार्गो है उसने एक स्विम सूट पहना और वो सन बाथ जो है वो लेना शुरू कर दिया, उसने वो धूप में जाके बैठ गया। ठीक है, और जो लैरी है वो क्या कर रहा था, अपना वो ट्रंक लेके आया और अपने रूम में उसने सारी तरफ बुक्स ही बुक्स जो थी वो रखी हुई थी कि कोई अंदर नहीं जा सकता था और कोई बाहर नहीं जा सकता था। मीन सारी जगह जो बुक्स हैं वो फैलाई हुई थी। ठीक है, और वो अपना टाइप राइटिंग का काम जो है वो कर रहा था। On the second morning he appeared in a highly irritable frame of mind, for a peasant had tethered his donkey just over the hedge. At regular intervals the beast would throw out its head and let forth a prolonged and doleful bray.
अगली मॉर्निंग में, सेकंड मॉर्निंग में क्या हुआ, वो बहुत ही इरिटेबल, मतलब बहुत ही गुस्से में खिंचा हुआ सा वो आया, क्योंकि एक पीसेंट जो था उसने अपना जो डोंकी है ना वहाँ पे उनके घर के पास ही एक हेज के साथ बांध के रखा हुआ था, और वो जो डोंकी है वो कॉन्टीन्यूसली मतलब वो अपनी आवाज़ें निकाल निकाल के उसको डिस्टर्ब कर रहा था। वाई डोंट यू मूव इट इफ़ इट डिस्टर्ब्स यू, said mother. My dear mother, I can't be expected to spend my time chasing donkeys about the olive groves. I threw a pamphlet on Christian Science at it. What more do you expect me to do? उसकी वो कहता है कि मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है, और उसकी मदर कह रही है कि तुम खुद ही साइड पे हो जाओ, और तुम क्यों इतना वो कर रहे हो। कहते हैं कि मैं अपना जो टाइम है ना वो डोंकी को मतलब उसको हटाने में, भगाने में अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहता, कि मैंने उसके ऊपर एक पैम्पलेट भी थ्रू किया कि और मैं इसके ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। द पुअर थिंग्स टाइड अप, यू कांट एक्सपेक्ट इट टू अनटाई इटसेल्फ। वो कहते हैं कि तुम उसको खुद से नहीं कर सकते, मार्गो कह रहे हैं कि तुम उसको खुद से अनटाई मतलब खोल नहीं सकते हो क्या। कांट वन ऑफ यू गो एंड मूव इट, वो कहते हैं कि क्या तुम में से कोई नहीं जा सकता, लैरी बोलते हैं। वाई शुड वी, इट्स नॉट डिस्टर्बिंग अस, सेड लेस्ली। लेस्ली कह रही कि हम क्यों जाए, तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है तुम जाओ, हम क्यों जाए, हमें तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। That's the trouble with this family, said Larry bitterly. No give and take, no consideration for others. तो लैरी जो बोलते हैं कि यही तो हमारी फैमिली में परेशानी की बात है, यही तो इस चीज़ पे तो हमें गुस्सा आता है कि कोई भी जो है हमारी मदद नहीं करता, कोई भी हमारी तरफ कंसिडरेशन नहीं करता, ठीक है। वो उनको होता है कि कोई भी गिव नहीं, कोई टेक नहीं, कोई किसी की हेल्प ना ले, ना किसी को कोई हेल्प दे। You don't have much consideration for others, said Margo. Margo कहते हैं कि क्या तुम्हारी कोई consideration नहीं है दूसरों के लिए, क्या हम तुम्हारी हेल्प नहीं करते। It's all your fault, mother, said Larry austerely. You should not have brought us up to be selfish. जो लैरी वो अपनी मदर को जो है वो फॉल्ट देना शुरू कर रहा है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने ही हमें जो है वो इतना सेल्फिश जो है वो बना दिया है। I like that, exclaimed mother. I never did anything of the sort. Well, we didn't get us as selfish as this without some guidance, said Larry. मदर कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और जो लैरी है वो कहता है कि हम इतने सेल्फिश जो हैं किसी की गाइडेंस के बिना नहीं बन सकते। In the end, mother and I unhitched the donkey and moved it farther down the hill. Leslie meanwhile had unpacked his revolvers and startled us all with an apparently endless series of explosions while he fired at an old tin can from his bedroom window. After a particularly deafening morning, Larry erupted from his room and said he could not be expected to work if the villa was going to be rocked to its foundations every 5 minutes. Leslie, aggrieved, said that he had to practice. Larry said it didn't sound like practice, but more like the Indian mutiny. At length, Leslie reluctantly took his tin farther away from the house, where the noise was slightly muffled but just as unexpected. अब इसमें क्या था, इन द एंड मदर एंड आई कौन है यहाँ पे, नरेटर, उन्होंने क्या किया, डोंकी को वहाँ से मूव कर दिया और हिल की तरफ नीचे को चल गया। उसके साथ ही जो लेसिल है उसने अपना सामान जो है वो अनपैक किया, और उसमें से उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसने अपनी प्रैक्टिस जो है वो करनी शुरू कर दी। और जो लैरी है वो बहुत ही गुस्से में कि इतना मैं अपना काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो कौन सा काम कर रहा था, टाइपराइटिंग का वो अपना काम कर रहा था। वो कहता है कि मेरे से काम नहीं इतना ऐसे होता कि अगर इस विला में इतनी जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। एग्रीव्ड मीन्स फीलिंग इल ट्रीटेड, मतलब वो अच्छे से बात नहीं कर रहा था, और मफल्ड मीन्स नॉट हर्ड क्लियरली। फिर उसने क्या किया, उसका जो टिन था उसको दूर मतलब फेंक दिया कि जिसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी ना आए, बहुत लिटल सी आवाज़ आए। इन बिटवीन कीपिंग अ वॉचफुल आई ऑन अस ऑल, मदर वॉज सेटलिंग डाउन इन हर ओन वे।
The house was redolent with the scent of herbs and the sharp tang of garlic and onions, and the kitchen was full of bubbling selections of pots, among which she moved spectacles, askew, muttering to herself. On the table was a pile of books which she consulted from time to time. When she could drag herself away from the kitchen, she would drift happily about the garden. फिर इसमें क्या किया, ये सब के ऊपर देखते हुए मदर अपना जो है वो अपना किचन में चले गई और क्या हुआ, रेडोलेंट, रेडोलेंट मीन्स स्मेलिंग स्ट्रांगली। जब हम किचन में काम करते हैं, जब हम कोई सब्जी को तड़का लगाते हैं वेजिटेबल को, ठीक है, उसमें जो हमारी हर्ब्स हम उसके अंदर जो डालते हैं उसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो पूरे घर में आ जाती है, ठीक है। जैसे हम गार्लिक की स्टार्टिंग में हम डालते हैं, गार्लिक का तड़का लगाते हैं तो उसकी स्मेल जो है वो बहुत अच्छी से आती है, फ्रेगनेंस जो है वो पूरे घर में आ जाती है। ऐसे ही जो उनके घर में जो हाउस था वो रेडोलेंट, बहुत ही अच्छा सा मतलब स्मेल आ रही थी, सारी जगह फ्रेगनेंस हो रही थी, ठीक है। और जो मदर थी वो अपना काम कर रही थी और उसने टेबल पे एक अपनी बुक रखी हुई थी और उसको देख देख के वो अपना काम कर रही थी। और अगर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था वो क्या कर रही थी, वो गार्डन की तरफ जो है वो देख रही थी। फॉर माई सेल्फ द गार्डन हेल्ड सफिशेंट इंटरेस्ट, टुगेदर रॉजर एंड आई लर्नड सम सरप्राइजिंग थिंग्स. Roger, for example, found that it was unwise to smell hornets, and that the peasant dogs ran screaming if they glanced at them through the gate. This garden was a magic land. वो कह रहा है, वो अब उसमें गार्डन की बात कर रहे हैं रॉजर और आई मीन्स यहाँ पे वो जो नरेटर है वो बात कर रहा है कि हम जो थे वो सारा कुछ इसको देख रहे थे। एंड हॉर्नेट्स आर द इंसेक्ट्स विद वेरी पावरफुल स्टिंग, जो डस लेते हैं बेटा, जो जैसे हमारी वास्प होगी ना वो भी जो है अगर हमें स्टिंग कर जाए तो हमें पेन होती है, ठीक है, वो उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टिंग जो है वो होती है, ठीक है। इसमें सारे क्या हैं, सारे के सारे जो है वो फ्लावर्स के बारे में और गार्डन के बारे में बताया है। Among the thick silky petals of each rose bloom lived tiny crab-like spiders that scuttled sideways when disturbed. On the rose stem, encrusted with green flies, ladybirds moved like newly painted toys. Carpenter bees, like furry electric blue bears, zigzagged among the flowers, growing fatly and busily. Hummingbird, hawk moth, sleek and neat, whipped up and down the paths with a fizzy efficiency. Among the white cobbles, large black ants stagged and gesticulated in groups around strange trophies. A dead caterpillar, a piece of rose petal or dried grass held fast with seeds. बेटा इसमें सब में, इस पैराग्राफ में, हाफ ऑफ द पैराग्राफ में गार्डन के बारे में बताया गया है कि कैसे उस पे सिल्की पेटल्स पे कैसे सारे के सारे जो बर्ड्स हैं वो और सारे के सारे जो इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो सब वहाँ पे थे, कि वो जो गार्डन है वो बहुत ही फुल था और उसमें ये सब कुछ जो इंसेक्ट्स थे, कैटरपिलर्स तक भी थे और जो रोज़ पेटल्स थी वो भी थी, वो सूख गई थी ग्रास की और उससे सीड्स बन रहे थे। मतलब बहुत कुछ इसमें बताया गया है गार्डन के बारे में। वो एक बहुत ही अच्छा गार्डन है जिसमें ये सारा कुछ है। I came to know the plump peasant girl who passed the garden every morning and evening. They were shrill and colorful as parrots, and their chatter and laughter echoed among the olive trees. In the morning they would smile and shout greetings, and in the evening they would lean over the fuchsia hedge and smiling hold out gifts for me. A bunch of amber grapes, still sun-warmed, some fig blacks as star-striped with pink, where they had burst their seams with ripeness, or a giant watermelon with an inside like pink eyes. As the days passed, I come gradually to understand them. इसमें बोल रहा है कि वो जो कहते हैं कि हम बैठे होते हैं, जो प्लम्प पीजेंट गर्ल्स हैं वो वहाँ से पास करती है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, ठीक है। वो हमें बुला के जाती हैं और हमें हेलो हाय करती हैं और हमें वो कुछ ना कुछ जो है वो दे के जाती हैं। कभी किसी का रस दे के जाती है, कभी किसी का ग्रेप्स दे के जाती हैं, कोई ना कोई फ्रूट्स जो है वो हमें एज अ गिफ्ट जो है वो ऑफ़र करके जाती हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट है एज द डेज पास, जैसे ही वो डेज पास हुए वो कहता है कि हमने उनको अंडरस्टैंड करना जो है वो शुरू कर दिया. वट हैड अ फर्स्ट बीन अ कन्फ्यूज्ड babbles बिकम अ सीरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेबल सेपरेट साउंड्स. Then suddenly these took on meaning, and slowly and hallelujahly I started to see them myself. Then I took my newly acquired words and strung them into ungrammatical and stumbling sentences. Our neighbors were delighted, as though I had confirmed some delicate compliment by trying to learn their language. कन्फर्म्ड मीन्स कम्युनिकेटेड. बेटा वो जो नरेटर था वो कहता है कि मैंने जितने भी उनके आसपास के लोग थे सबकी जो लैंग्वेज थी उसको मैंने अंडरस्टूड जो है वो करना शुरू किया और उनके बारे में जानना शुरू किया. धीरे धीरे उन लोगों ने भी मेरे बारे में मतलब हमारी बातों को सुनना और अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई और उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि हम उनके जो वर्ड्स हैं उसको याद कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं. आई लर्नड, आई ग्रोप्ड my way, though a greeting or a simple remark, and when I had successfully concluded, they would beam to me, nodding and smiling, and clap their hands. By degrees, I learned their names, who was related to whom, which were married, and which hoped to be, and other details. I learnt where their little cottages were among the olive groves, and should Roger and I chance to pass that way, the entire family vociferous and pleased would tumble out to greet us. वो कहते हैं कि हमने धीरे धीरे उन लोगों के नाम याद करने शुरू किए, कौन मैरिड है, कौन किससे रिलेटेड है और उनके जो कॉटेज है वो कहाँ पे है और वो कौन सी जगह पे रहते हैं और उनके बारे में और उनके ओपिनियंस लेने भी शुरू किए कि कौन कैसे लाउडली बोल रहा है और कैसे किस चीज़ को हमने कॉन्फिडेंटली रखना है. मतलब उनके बारे में हर चीज़ के बारे में हमने पता करना जो है वो शुरू किया. So in the last paragraph, gradually the magic of the island settled over us as gently and clingingly as pollen. Each day had a tranquility, a timelessness about it, so that you wished it would never end. But then the dark skin of night would peel off, and there would be a fresh day waiting for us, glossy and colorful as a child transfer, and with the same ting of unreality. वो लास्ट पैराग्राफ में बोल रहा है कि हमने धीरे धीरे जहाँ हम इस विला में आए थे हमने उसको अडेप्ट जो है वो करना स्टार्ट किया. हमने यहाँ पे रहना हमें अब अच्छा लगना शुरू हो गया और हम इस चीज़ को जो है वो अपनापन दे रहे थे और हमें पता ही नहीं चलता था कि शांति से हम लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं. और जैसे जैसे दिन पास होता था, नाइट होती थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि और हम वेट करते थे कि अगला दिन आएगा. तो वो कह रहे हैं कि अब हमने यहाँ पे जो रहना ना हमें यहाँ पे पसंद आना शुरू हो गया था. ट्रांसफ़र अ स्मॉल कलर्ड पिक्चर और डिज़ाइन ऑन पेपर विच कैन बी ट्रांसफर्ड to another surface by being pressed or heated. मीन्स कि उनको यहाँ पे जो रहना था वो अच्छा लग रहा था और उन्होंने इस चीज़ को पूरा अडेप्ट कर लिया था कि हम यहाँ पे रह के खुश हैं. सो दिस इज़ योर स्टोरी. थैंक यू बेटा.